Hello student, today I am going to discuss about the question of bank reconciliation statement. Here we will see the question when the balance of passbook is given. In earlier videos we have done the question of cash book balance, and now we are going to discuss about passbook balance. If passbook balance is given, then how we will calculate the balance of cash book. Let us assume the date of question is given 31st March 2021. This is the last date when the balance of passbook is given. You know about the format. We make two columns there. One is for plus and the second one is for minus, and this one is particulars. Balance as per passbook is given. If it is credit balance of passbook is given, so it is favorable balance, as we all know. So we will write down it in plus side, credit balance as per passbook. How much value is given? This is 15,000. 15,000 to his credit. It is given there. We will write in plus column, and now one by one we will see what are the changes, what are the differences that has been in cash book and passbook, which is given there in question. First point is given: before that date he had issued check amounting to rupees 8,000, of which check amounting to rupees 3,200 have so far been presented for payment. 8,000 rupees check is issued before that date. So date दिया, last date 31st March. On that day when they are looking for the balances, they said on this 31st March 8,000 rupees check has been issued. But till now, how much check has been cleared for payment? 3,200 rupees. So it means you have subtracted in your cash book 8,000. But what happened in passbook? Only 3,200 subtracted. जब आप 8,000 रुपए की चेक दे रहे हैं तो 8,000 रुपए आपने तो माइनस कर लिया अपनी कैश बुक में, बिकॉज कैश बुक में इमीडिएट एंट्री हो जाती है. यू सब्सट्रैक्टेड 8,000 as you consider that whole amount will be paid in coming days. But when you see your book, what you have get from that book, the information, what are the information you getting from that book? That is, you subtracted 8,000 in cash book, but in bank 3,200 has been paid so far till that day. So the difference between these two books, how much is the difference? 4,800. So now you subtract 4,800 in passbook. Why it is in passbook? Because you have the balance of passbook. आप कौन सा बैलेंस लेके चल रहे हैं? पासबुक का. तो 4,800 माइनस कर देंगे और लिखेंगे चेक issued but not presented for payment. जो डिफरेंस अमाउंट है वो 4,800 है, वो माइनस कर देंगे. 4,800 आया कहाँ से है? 8,000 माइनस. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, a check of 2,200 paid by him into the bank on this date is not yet credited in the passbook. एक चेक था 2,200 का, 26 मार्च को बैंक में डिपॉजिट किया गया, बैंक में दिया गया. इट इज़ नॉट इशूड, इट इज़ डिपॉजिटेड, बिकॉज वर्ड यूज हुआ है पेड बाय हिम. अ चेक ऑफ 2,200 पेड बाय हिम. सो पेड वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा कि किसी को पेमेंट करना है. नो, पेड बाय हिम
इनटू द बैंक, मतलब किसी और को नहीं दे रहा, बैंक को दे रहा है। तो बैंक को दे रहा है इसका मतलब बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, मतलब समवन हैज़ गिवन हिम एंड नाउ ही इज़ गोइंग टू द बैंक एंड डिपॉजिट देयर। तो इसको तो ये लगेगा ना कि बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे 2200, बट हुआ क्या वहाँ पे? बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, लिखा हुआ है बैंक इज़ नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। सो सिचुएशन ये है कि योर कैश बुक इज़ अप एंड योर पासबुक इज़ नॉट चेंज। मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में कि व्हेन योर वन बुक इज़ अप and the book which you have taken, the balance of the book which is given, if it is not up, so increase that value to find out the opposite book balance. पासबुक का बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है, कैश बुक का बैलेंस आपको नहीं दिया हुआ है। आपको कैश बुक का बैलेंस निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? आप इस पासबुक को इंक्रीज कर दें इतने अमाउंट से, जितना अमाउंट कैश बुक में अप है 2200। check paid into bank but not collected, amount बताइए 2200। is this clear? Next, he had also received a check of 500 which although entered by him in the bank column of a cash book was omitted to be paid into the bank। 500 रुपये का उसे एक चेक मिला, उसने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में एंट्री भी कर दी, बट ओमिटेड टू बी पेड इनटू द बैंक, लेकिन बैंक भेजना भूल गया। ओमिटेड टू बी पेड इनटू बैंक, बैंक भेजना भूल गया। तो बैंक अपने आप से तो अमाउंट बढ़ा नहीं देगा, बैंक तभी प्लस करेगा जब उसके पास चेक पहुंचा होता। समझ रहे हैं? पेड इनटू बैंक अभी वर्ड हमने यूज़ किया कि किसी से चेक मिला इस बंदे को और इसको बैंक भेजना था उस चेक को, इसने अपने यहाँ एंट्री कर ली, अपनी कैश बुक बढ़ा दी, बट पासबुक नहीं बढ़ी। यू शुड इंक्रीज इट। क्या करेंगे? एंट्री चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक, अमाउंट बताएं 500। नेक्स्ट वन, on 30th March a check for 1570 received by him was paid into the bank but the same was omitted to be entered in the cash book। अब ये थोड़ी सी एक डिफरेंट एंट्री है जो ऊपर वाली एंट्री उससे। एक बंदे ने चेक दी इनको 30th मार्च को, चेक मिला 1570 का, रिसीव्ड बाय हिम, was paid into the बैंक, बैंक में पेड कर दिया गया, बट द सेम वॉज ओमिटेड टू बी इंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में एंट्री करना भूल गया। मतलब आपने चेक लिया, बैंक भेज दिया, बैंक में एंट्री हो गई, बट आपकी बुक में एंट्री करना भूल गए कैश बुक में। क्या करें? कौन सी बुक लेकर चल रहे हैं? विच बुक इज देयर? पासबुक। क्या करें? इसको सब्सट्रैक्ट कर दें। कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे? 1570। लिखेंगे चेक सेंड टू बैंक बट omitted to record in कैश बुक। कितना था अमाउंट? 1570। इज इट क्लियर? आप सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? सो जाते हो क्या तुम लोग? इतना अच्छा हम पढ़ाने लगते हैं। आप सभी को समझ में आ रहा है? बोल दिया करो कभी कभी। देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ 150 फॉर इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट। हमें 150 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला है। क्या करें इसको? क्रेडिट इंटरेस्ट मिला है या क्रेडिट किया गया है, इट मीन्स बैंक गिव्स अस इंटरेस्ट। सो हमारी पासबुक बढ़ गई, बट ये बढ़ा, कैश बुक नहीं बढ़ेगा क्योंकि बैंक हमें इन्फॉर्म नहीं करता है। सब्सट्रैक्ट कर दें क्योंकि हमारी पासबुक अप है, अपोजिट बुक कम है, कैश बुक में हम चेंज कर नहीं सकते, तो हम इसको माइनस कर दें। बैंक अलाउड इंटरेस्ट कितना?
150 एंड बैंक ने डेबिट भी किया है हमारे अकाउंट को चार्जेस के नाम से. अ डेबिट चार्जेस बैंक डेबिट द अकाउंट एज अ चार्जेस एज अ बैंक चार्जेस 25 रुपीज़ चार्ज के नाम पे डेबिट किया. क्या करें इसमें? अब 25 रुपीज़ बैंक ने अगर डेबिट किया है तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज़ करें. बैंक क्रेडिट करता है तो फेवरेबल है, मतलब प्लस. कहते हैं ना बैंक क्रेडिटेड, आप लोग के मैसेज आता होगा बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट. कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करता है अकाउंट में तो लिख के आता है अमाउंट क्रेडिटेड इन योर अकाउंट. क्रेडिटेड मतलब प्लस. बैंक अगर डेबिट कर रहा है व्हेन यू पेड, व्हेन यू सब्सट्रैक्ट, मतलब बैंक आपका अकाउंट सब्सट्रैक्ट कर रहा है. 25 रुपीज़ बैंक ने सब्सट्रैक्ट कर दिए, बट कैश बुक में तो नहीं हुई एंट्री. बैंक इन्फॉर्म नहीं करता है कि मैं आपके 25 रुपये कम करने जा रहा हूँ, 25 रुपीज़ कम करने जा रहा हूँ. इट मीन्स यहाँ कम हुआ बट यहाँ कम नहीं हुआ. सो अगेन कौन सी बुक आप लेकर चल रहे हो? किस बुक का बैलेंस गिवन है? पासबुक का. बैलेंस कौन सा निकालना है? कैश बुक का. तो कब निकल सकता है कैश बुक का बैलेंस? जब हम इसमें 25 रुपीज़ प्लस कर दें. इज दिस क्लियर? So this is 25 rupees of bank charges. Now after writing all points टोटल करिए, दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं. कितना आ रहा है आपका? 17,725. क्रेडिट का कितना आ रहा है? 0 6520. Isn't it? 6520. अब इसमें से आप देखकर बता सकते हैं किधर का ज़्यादा बैलेंस है? प्लस का. प्लस साइड का ज़्यादा है. इसका मतलब जो बुक ऊपर दी है उसका अपोजिट बुक कौन सा होगा? अगर ऊपर पासबुक है तो इसका मतलब बैलेंस किसका निकाल रहे हैं? कैश बुक का. तो यहाँ कैश बुक में प्लस में पैसा है. प्लस का मतलब फेवरेबल है. प्लस का मतलब फेवरेबल है. और फेवरेबल का मतलब, अब ध्यान करो, कैश बुक प्लस का मतलब डेबिट. कैश बुक प्लस आ रही है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस. तो यहाँ लास्ट में लिख दीजिएगा डिफरेंस निकालकर. क्या लिखेंगे बोलो? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. अमाउंट बताएं, डिफरेंस देख लीजिए. 502111205. दिस इज द बैलेंस. इज दिस क्लियर? इसका डिफरेंस है. अच्छा सपोज करिए आप लोग भी देख लीजिए इसको. अगर मान लीजिए माइनस का टोटल ज़्यादा आ जाता, माइनस का साइड ज़्यादा होता और प्लस का कम होता, तो बैलेंस माइनस में लिखते. और फिर इसका मतलब होता है कैश बुक का माइनस बैलेंस. और कैश बुक का माइनस बैलेंस, इसका मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है कैश बुक का, राइट? पेमेंट साइड ज़्यादा है, तभी तो माइनस आ रहा है. तो फिर हम यहाँ लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक. इज दिस क्लियर? जो भी बुक लेकर चलेंगे उसकी अपोजिट बुक यहाँ पर हमें लिखनी है. सो दिस इज योर क्वेश्चन. व्हेन बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन, इट इज़ वेरी इजी. सेम मेथड है, सेम तरीका है जो हमने अर्लियर वीडियोस में देखा है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब करें, लाइक करें PN पांडे मोहित चैनल. थैंक यू.